students, how are you all? I hope you all are good and doing very well. So today we will do class mathematics chapter 1, and this is the introduction of exercise 1.3. What is the meaning of subset? Subset किसे कहा जाता है बेटा? For example, एक एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं कि सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, एक्स जो एक ऐसा सेट है जहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट है आपके स्कूल के, और सेट वाई ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास. तो हम ये कहेंगे कि जो आपके स्कूल में स्टूडेंट हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इज ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. तो इस केस में यस वी कैन से दैट y इज अ सबसेट ऑफ x. ठीक है, तो हाउ कैन वी डिफाइन इट? हम कैसे से डिफाइन करते हैं? अ सेट A इज सेट टू बी सबसेट ऑफ B. अगर एक सेट है सेट A, वो सेट B का सबसेट कब होगा? जब every element of set A is also the element of set B, यानी कि A के सारे एलिमेंट B में भी प्रेजेंट हो. And how we write it? A is subset of B. This symbol represents subset of this. Okay, you have also done this. ये कौन सा symbol है? A is an element of A. Then A will be the element of B. So yes, we can write that if A is a subset of B, then if A is the element of A should be the element of B. यानी A के सारे एलिमेंट B के भी एलिमेंट्स होंगे. So let us move ahead now. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है, हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं एलिमेंट किसी भी सेट की, सपोज आई हैव अ सेट A will always be a subset of itself. Every set is a subset of itself. Phi is also the subset of every set. Phi जो होगा वो क्या होगा? It is a subset of every set. तो ये दो चीजें याद रखिएगा. Phi कैसा सेट होता है बेटा? Phi is known as कैसा सेट होता है? Empty set. Empty set जिससे कोई एक भी एलिमेंट नहीं हो जिसके अंदर. तो every set is subset of itself and phi is also subset of. Do the same thing with the help of examples. यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिए हैं? The set of Q is, the set of Q of rational number is a subset of R. So yes, it is obvious कि सारे के सारे rational number जो हैं that is also real number. So Q is also, Q means quotient और rational numbers. तो सारे rational numbers जितने भी rational number है that is also real numbers. So we can say that rational numbers is a subset of real numbers. Now the second क्या given है? A is a set of all the divisors. A जो है वो सारे divisors का set है. And B is a set of all the prime divisors. B is a set of all the prime divisors. So it is obvious कि B prime divisors का set है, तो B will also carry all that element that is also present in A. So B is a subset of A. ठीक है, क्योंकि जब सारे डिवाइजर्स आ गए उसमें प्राइम कंपोजिट सारे ही डिवाइजर्स आ गए, तो ये जो प्राइम डिवाइजर्स है दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर ऑल्सो. तो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? 135. यहाँ पे 3 नंबर है 135 और यहाँ गिवन है कि ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 6. So which are the odd natural number less than 6? 135 are the odd natural numbers less than 6. So we can say that कि यहाँ पे तो जो A है ना वो B के equal है. So this is quite often B is a subset of A and A is a subset of B. That means अगर ऐसा होता है कि दो set equal हो जाते हैं, then both of the things are true. A is a subset of B and B is a subset of A. Now the last one, last में आपको क्या given है? A equal to A E I O U, but B equal to A B C D. Then A is not a subset of B. A is not a subset of B. A B का subset नहीं है. ठीक है, simple. चेक कर लेते हैं. A is present here. A is also present here. But B is, E is present here. E is not present in the second set. So this is quite often A is not a subset of B. कैसे लिखेंगे? A is not a subset of B. ठीक है,
क्योंकि सारे एलिमेंट का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 2 एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट नहीं है, देन वी कैन से दैट नो। So let us move ahead now. Let us do exercise 1.3 question number 1. Question number 1 में क्या given है? 2 present here, 2 is also present here. Come to the next. 3 is present here, 3 is also present here. Come to the next, that is 4 is present in both. So it is quite simple कि ये तीनों एलिमेंट जो फर्स्ट सेट में है वो सेकंड सेट में भी प्रेजेंट है. So we will put this sign here. Yes. Now the second part. Let us check. Second part में A is present here, A is not present in the second set. So it is quite simple कि अगर एक एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है और दूसरे सेट में प्रेजेंट नहीं है, so this is not the subset of the second. Third part, X is a student of class 11th of your school and X is a student of your school. So class 11th के सारे student will also be the student of school. So this is also the subset. Now, fourth part, X is a circle in a plane and second set, X is a circle in the same plane but उसकी radius जो है 1 unit है. तो ये तो सिंपल है कि अगर हम सारे सर्कल की बात कर रहे हैं फर्स्ट सेट में, वी विल हैव ऑल द सर्कल्स प्रेजेंट. वो सर्कल कैसे भी हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, साइज में उनकी रेडियस 1 हो सकती है, 1 से कम हो सकती है. सो दैट मीन्स yes, this is not subset of second set. ठीक है. So for fifth part, X is a triangle in a plane. ठीक है. और ये किसका सबसेट होगा? रेक्टेंगल का. तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल के बीच में तो कुछ भी आई मीन कॉमन नहीं है ना. दोनों में ट्राइंगल इज डिफरेंट शेप एंड रेक्टेंगल इज डिफरेंट शेप. So this is not subset of the second one. Now sixth, X is an equilateral triangle in a plane and X is a triangle in a plane. So yes, ये इसका सबसेट है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर हम सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करेंगे दैट इज ऑल्सो ट्राइंगल. तो यहाँ पे कॉमन हमने ले लिया कि सारे ट्राइंगल आ गए, तो उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल भी इंक्लूड है. लास्ट है X इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड हियर इट इज गिवन इट इज एन इंटीजर. तो अगर हम बात करते हैं इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में कैसे नंबर्स आ जाएंगे? ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर देयर, 0 is there, all the positive numbers are there. If we have all the positive numbers there, that means it is obvious कि वहाँ पे सारे even number भी present होंगे. ठीक है. So yes, we can say that this is also the subset of B. So this is our first question, depends on the introduction. Let us move to the second question. सेकेंड क्वेश्चन में ऑलरेडी स्टेटमेंट गिवन है, अपनी ट्रू फॉल्स बताना है. तो चेक कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट, ए इज प्रेजेंट हेयर, ए इज ऑल्सो प्रेजेंट हेयर, बी इज प्रेजेंट हेयर, बी इज ऑल्सो प्रेजेंट हेयर. तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेट में 2 एलिमेंट है वो सेकेंड सेट में भी प्रेजेंट है. तो इट शुड बी अ सबसेट ऑफ सेकेंड, बट यहाँ पे नॉट अ सबसेट का सिंबल है, दैट इज दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड में क्या गिवन है? ए प्रेजेंट हेयर, E is also present here and here they are talking about कि सारे के सारे vowels आ जाएं. तो अगर हम सारे vowels को cover कर रहे हैं that means A and E will be there. तो yes, this is a true statement क्योंकि फर्स्ट में जो भी 2 एलिमेंट है वो सेकंड सेट में भी प्रेजेंट है. नाउ कम टू द थर्ड. अगर हम थर्ड की बात करें 1 2 3, 1 is present here, this is also present here, 2 is present here, but we can say that 2 is not present in the second subset. ठीक है. तो अगर ये 2 दूसरे सेट में प्रेजेंट नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता. बट इन दिस स्टेटमेंट दिस इज गिवन कि ये इसका सबसेट है. So we can say that this is a false statement. Now the next, A is present here and A is also present here. So this is quite simple. Yes, this is subset of this. लिखा भी यही है कि ये इसका सबसेट है. So we can say that yes, it is a subset of set B. Now A is present here, but यहाँ पे क्या है? करली ब्रेसेस के साथ लिखा हुआ है. तो करली ब्रेसेस के साथ अगर लिखा हुआ है तो हम इसको एलिमेंट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना. इफ यू हैव करली ब्रेसेस दैट मीन्स कि ये क्या बन गया? एक सेपरेट सेट बन गया. और उसके लिए हमें क्या रिप्रेजेंट करना पड़ता है? इट इज अ सबसेट ऑफ दिस ABC. अगर ये ऐसे लिखा होता तो करेक्ट होता. ठीक है.
So this is a false statement. लास्ट में क्या गिवन है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6. तो कौन से इवन नेचुरल नंबर है जो लेस देन 6 है? यस, वी हैव 2 and 4 ओनली. ठीक है. एंड हियर वी हैव x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36. तो ऐसे कौन से नेचुरल नंबर हैं जो 36 को डिवाइड करते हैं? देयर आर मेनी नंबर्स, 1 2 3 4 6 is there, 9 is there, 12 is there, 18 is there and 36 is also there. So we can say from here कि 2 is present here, this is also present here, the second element is also present in the second set. So yes, it is a subset of this. तो यहाँ पे already given है कि ये subset है, so this is a true statement. ठीक है. So first statement was false, second is was true, third is false, fourth is true, fifth is false and sixth is true. So let us move to the next part, that is third. So this is our third question. What is given in the third question? If a equal to 1 2 3 4 एक एलिमेंट है और करली ब्रेसेस के अंदर है. ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा. 3 4, this is an element that is present in the curly braces. Okay, so what is given here? 1 2 3 4 5, which of the following statement is incorrect? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है और क्यों है इनकरेक्ट, ये भी बताना है. So let us start with very first part. First statement is incorrect. क्यों है incorrect? First statement incorrect क्यों है? क्योंकि within curly braces 3, 4 is element of A. क्योंकि ये curly braces यहाँ पे already given है, तो ये set को represent नहीं करते हैं. क्योंकि ये curly braces के साथ अंदर present है, तो ये किसको represent करते हैं कि 3, 4 within curly braces is an element of A. So this is incorrect statement. Now come to the second. Within curly braces 3, 4 is element of A. Yes, this is correct statement. This is correct statement. I have written C here. Third, 3, 4 within curly braces and again within curly braces is subset of A. Yes, this is also correct statement. क्योंकि 3, 4 तो एलिमेंट है और जब हम उन्हें कर्ली ब्रेसेस में रख देते हैं, ठीक है, ये वाले जो कर्ली ब्रेसेस हमने लगाए हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. बट विद इन कर्ली ब्रेसेस 3, 4 ये ऑलरेडी एक, ये जो इतना पार्ट है, अंदर वाला जो पार्ट है विद इन कर्ली ब्रेसेस, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. और एलिमेंट के साइड में अगर हम कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं, दैट मीन्स वो एक सेट बन जाता है. तो यस, वी कैन से दैट कि यहाँ पर जो है ये सेट है और ये स्टेटमेंट यही रिप्रेजेंट करती है कि ये A का सबसेट है. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ 1 इज द एलिमेंट ऑफ A. So let us check 1 is present here in A. So this is a true statement, a correct statement. This is a correct statement. Fifth, 1 is सबसेट ऑफ A. तो बेटा सबसेट होने के लिए तो फिफ्थ पार्ट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं फिफ्थ पार्ट की बात करूं तो हम कैसे कहेंगे कि ये सबसेट है? अगर हम यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर 1 को रखेंगे, देन इट विल बी अ सबसेट ऑफ A. क्योंकि सेट की पहचान ही यही है कि उसमें करली ब्रेसेस लगे होने चाहिए. So this is an incorrect statement. Sixth part, 1 to 5. So let us check 1 to 5 are present there or not. 1 2 and 5, yes, तीनों यहाँ पे present है. और एंड तीनों को मिला के, इन तीनों एलिमेंट्स को अगर हम करली ब्रेसेस में रखते हैं तो एक सेट बन जाता है और ये सेट A का सबसेट है. So yes, this is quite true statement. We will write C here, correct statement है. Seventh part, 1 to 5 again. बट यहाँ पे 1 to 5 अगर करली ब्रेसेस के अंदर है, दैट मीन्स ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि ये एक एलिमेंट है. तो सेवेंथ के लिए हम क्या कहेंगे? फॉर सेवेंथ पार्ट वी विल राइट फॉर सेवेंथ पार्ट कि 1, अगर हमें ऐसे लिखना है कि ये इसका एक एलिमेंट है तो हम लिखेंगे कि 1 2 5 और ये अगर करली ब्रेसेस के अंदर है देन वी विल राइट कि ये सबसेट ऑफ A है, ना कि एलिमेंट ऑफ A है. सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नाउ एथ पार्ट 1 2 3 इज सबसेट ऑफ A. तो अगर 1 2 3 मैं चेक करूं, यहाँ पे 1 2 3, 1 इज देयर, 2 इज देयर, बट 3 जो है ना इंडिविजुअली प्रेजेंट नहीं है, वो एक करली ब्रेसेस के अंदर 4 के साथ प्रेजेंट है.
तो हम नहीं कह सकते कि 1 2 3 एक सेट है, सबसेट है ए का. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, 1 2 3 इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि 3 जो है बाउंड है 4 के साथ, वो 4 के साथ ही प्रेजेंट होगा, तभी वो करेक्ट होगा. देन नेक्स्ट 5 इज सबसेट ऑफ, 9th पार्ट की बात कर रही हूँ. 5 इज सबसेट ऑफ ए. दिस इज क्वाइट इनकरेक्ट स्टेटमेंट. व्हाई दिस इज इनकरेक्ट? 5 जो होता है एक सेट होता है बेटा, तो हम कहेंगे 5 इज अ सबसेट ऑफ ए. ये करेक्ट होगी स्टेटमेंट. ठीक है, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. 10th statement, 5 is a subset of A. So yes, this is a correct statement as I have discussed here. Or last, within curly braces, 5 is subset of A. This is incorrect statement. क्योंकि 5 को हम curly braces में नहीं रखते हैं. 5 will never kept in the curly braces. है ना? 5 हम direct लिखते हैं. 5 is an empty set and we don't need any curly braces for that. So we have done question number 1 2 3 from exercise 1.3 and I will upload soon the next part of this. Thank you so much for watching, and everyone please who like the video, press the like button, subscribe the channel and share it with your friends. Thank you so much for watching. So in the next part we will have the rest part of this exercise.